Students, so as we are learning making of nationalism, and yesterday I explained you the topic of advent of Mahatma Gandhi, that how Mahatma Gandhi has become an important figure into bringing people together and initiating or igniting the feeling of nationalism among the masses. The Rowlatt Satyagraha, as I have explained yesterday also, is speaking about an act which was initiated by the British in India and abolishing people of India having arms and weapons along with them, forming groups, and these were not accepted by us. So in return to that, what we did, we have organized a strike or हड़ताल, और हमने उसके खिलाफ खड़े होने के लिए वी ऑल हैव कम टुगेदर, वी डिसाइडेड कि हम उनका ये एक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन इसके अगेंस्ट जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है, मतलब हम उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश ने लगा दिया है, और इसी बीच जलियांवाला बाग मास्कर takes place 13th April 1919, when on a day of Baisakhi people have gathered at Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi. General Dyer has opened fire on the people, expressing our grief and intense disappointment against the British government. Many of our Indian nationalists have returned their titles, like Sir. Knighthood title by Rabindranath Tagore was renounced by the to the East India Company. Now, during the Rowlatt Satyagraha, the participant tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो यूनिटी है वो उन्हें दिखनी चाहिए, उन्हें समझ में आनी चाहिए दैट वी आर यूनाइटेड। वी हैव ऑलरेडी नोन दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गया था 1906 में एट ढाका, और उनके अपने अलग डिमांड्स चल रहे थे, बट लखनऊ पैक्ट में उन्होंने अग्री किया कि वो एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो रॉलेट एक्ट हैज़ बिकम दैट प्लेटफॉर्म जहां हमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखने के लिए मिली, and they were against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country. महात्मा गांधी जी भी ये जानते थे और चाहते थे कि जितने लोग, जो भी जिस भी कम्युनिटी से आए, जिस भी रिलीजन से आए, वो अगर इकट्ठे खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए हमारी एक स्ट्रेंथ का काम करेगी। ही वॉज वेरी मच कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन अ जस्ट कॉज, इन एनी ऑफ द जस्ट कॉज। किसी भी अच्छे काम के लिए वो एक दूसरे के साथ अगर हमेशा खड़े रहेंगे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। Now, in the series of these movements, Khilafat Act after the Rowlatt Act comes the Khilafat agitation and the non-cooperation movement. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा। टर्की में उस समय एजिटेशन चल रहा था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और वहाँ पर भी ईस्ट इंडिया का मतलब ब्रिटिश वर रूलिंग, और उन्होंने वहाँ पे एक समझौता लागू कर दिया। ट्रीटी मीन समझौता, एक काइंड ऑफ अ सेटलमेंट। जब उन्होंने वहाँ के जो सुल्तान थे ना, उनको बैन कर दिया, मतलब इट वाज लाइक कि ही विल नॉट बिकम द रूलर ऑफ द टर्की। ये चीज़ जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, सब ने बॉयकॉट की। इंडिया के भी मुस्लिम इसके खिलाफ खड़े थे, और दिस इवेंट वॉज टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय दी महात्मा गांधी कि अब हम, जैसे कि रॉलेट एक्ट के टाइम पे मुस्लिम्स हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव सपोर्टेड अस, द सेम वेरी वे खिलाफत एजिटेशन was one such event where Hindus have got the opportunity to show their support towards the Muslim community. और खिलाफत एजिटेशन में हिंदू और मुस्लिम सारे लीडर्स इकट्ठे खड़े हुए और वो ईस्ट इंडिया के खिलाफ they were together. Now within all these phrase, ये सब कुछ चल रहा है। पंजाब में भी जलियांवाला बाग मास्कर हो गया, टर्की में भी टर्किश सुल्तान को बैन कर दिया गया। We have thought of implementing and initiating something which can show the unity to the British on a large scale. अब ये large scale क्या था? ये large scale था non cooperation movement which has gained the momentum
through 1921 and 22. The non-cooperation movement says that we are not going to cooperate with the East India Company. We are neither going to follow their rules and regulations. And under this movement, thousands of the students have left government controlled schools and colleges, and many lawyers like Motilal Nehru, C.R. Das and Rajgopalachari, जो उस समय के बहुत ही रिनोन्ड लॉयर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बॉयकॉटेड. जो भी मतलब लेजिस्लेचर आप समझ ही रहे हैं, पार्लियामेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब अब वहाँ से जो भी लॉज बनाए जाएंगे हमारे लिए, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पीपल हैव लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स. जितने भी विदेशी आइटम थे, जितने भी फॉरेन गुड्स, जैसे कि मैंने आपको जब क्लोथिंग का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि किस तरह से मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया में आके सेल हो रहे थे एंड पीपल वर ट्राइंग टू बाय देम. ये सब कुछ जो चल रहा था उस समय, ये बॉयकॉट मिशन चल रहा था कि अब हम कोई भी आउट ऑफ इंडिया मेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे. इससे दो चीज़ें हुई. एक तो हमने ब्रिटिशर्स को अपनी यूनिटी दिखा दी, हमने उनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट किए, तो उनकी इकोनॉमी को काफ़ी फ़र्क पड़ा. साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब इंडिया के जितने भी वीवर्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ताकि वो अपने हाथ के बनाए हुए कपड़े इंडिया में सेल कर सके. और भी इसी तरह की जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, वो सब कुछ यहाँ पर शुरू हो रहा था फिर से. तो दिस हैज़ बिकम वन इम्पॉर्टेंट मोमेंट विच हैज़ शोड अस आर यूनिटी एंड आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो. ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए ये समझना कि हम अगर इकट्ठे हैं तो हाउ आर वी सो पावरफुल एंड वी कैन ईजिली डिफीट द British in India. That's all for this video. I'll continue with the next topic in the next video.